Okay, there is a slight update in the timetable. Have you all been communicated? We have a class now on. One more class has been added. I suppose on Thursday, Wednesday. Are you all aware about it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So kindly make changes in your timetable, and one class has been added. And for one, the timing. I suppose the timing has not been changed. Timing is same. Only one class has been added in the schedule. So okay, fine. Um, you can come in coordinate with your class coordinator regarding this and get the timetable, updated timetable, and if not, then I will provide you. Fine. So let's start with today's lecture. Okay, is the PPT visible? Yes, sir. Okay, fine. Any doubts till this point of time in the subject? Actually, quick review. Till this Erdős-Rényi random graph model, we discussed about the basic properties of our network, and then we said that now once we have identified that we can do analysis over the network based upon these four properties, now we try to calculate all these four properties, that is the degree distribution, diameter, clustering coefficient, and connectivity for some real world networks. Like for MSN messenger network we saw of a protein-protein interaction network and so on. Now we got some values. We got some values for all these parameters. Now we want to check whether these values are as per our expectation. Now for to judge that whether these values have been in accordance that what we have expected, we require some reference model for the same. Okay, and that reference model has been termed as over here as Erdős-Rényi random graph model. Okay, Erdős-Rényi random graph. So we saw two versions of this graph model, that is GNP and GNM. GNP is the one in which we are provided with a number of nodes, and there is an independent identical distribution with probability P to have an edge between any two node pairs. Okay, the distribution is in accordance with probability P to have an edge between any two nodes of the graph. Okay, and the second version was G and M, where we are provided with nodes and a number of edges, and that edges can appear in any format. Okay, so more or less the two models are one or the same, but with different idea. Okay, we saw that if we consider this kind of a random approach to have an edge between the nodes, then we come up with the notion that the degree distribution for such a graph uh, will be binomial. Okay, so we saw that how a binomial distribution function looks like. So it is n minus 1 ck with the probability p to the power k, and 1 minus p, that is the probability of failure, to the power n minus 1 minus k. Okay, based upon this we saw that the ratio of mean to standard deviation is inversely proportional to the size of the network. That is, we can say that as the number of nodes in the graph increases, the distribution becomes increasingly narrow. That is, there are more chances to have nodes having a degree around k. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि किसी ग्राफ की एवरेज डिग्री 4 है, ठीक है, और उसमें मैं नोड्स को बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरे पास चांसेस ज़्यादा ये रहेंगे कि जितनी भी नोड्स हैं वो ज़्यादा नोड्स ऐसी होंगी जिनकी डिग्री 4 के आसपास होगी, 3.8, 3.5, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, देयर विल बी वेरी small portion of nodes having very high degree than 4 and very low degree than 4. Okay, in case of now remember this, that this property satisfies as long as we consider that the degree distribution is binomial.
ठीक है. We will check whether this conforms with the real world network or not, but for the time being we are assuming that for a random graph model, the degree distribution for the nodes is binomial distribution. Okay. Then based on this, we calculated clustering coefficient of a random graph model. So it comes out to be average degree over n. ठीक है. इसको अपन ने सॉल्व करके भी देखा था, तुम्हारे उसके अंदर होगा. लास्ट नोटबुक में. ठीक है. This the last class. ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है. Okay. So we saw this in the last class that how we can attain this. ठीक है. ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है. Fine. Now switching back to what we were discussing. So based on these, I have my degree distribution as defined by this probability distribution function and clustering coefficient given as k bar by n. Now next we will discussing about the path length. Now अब दो ही चीजें रह जाती हैं, path length और connectivity. So the path length, for the path length we have a measure alpha. We have a measure alpha which is defined as expansion coefficient. Okay, expansion alpha. So what this alpha suggests that the number of edges leaving any set S is greater than equal to alpha times the minimum of the set S and V minus S. This stands for V minus S. ठीक है. इसका नोटेशन है ऐसा. So this stands for V minus S. Okay. Fine. तो ये क्या कह रहा है कि सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है. ठीक है. तो इससे आगे जब एचएस एक्सपैंड, मतलब फ्यूचर में ग्राफ एक्सपैंड होगा, तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो इसकी इक्विवेलेंट होगा. ठीक है. नंबर ऑफ एजेस लीविंग एस डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ एस और वी ऑब्लिक एस. ठीक है. या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं ग्राफ को दो पार्ट में कंसीडर करूं तो इस पार्ट का जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड करेगा कि अगर नोड्स यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर यहाँ ज्यादा है तो इंटर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी. मतलब जिस तरफ नोड्स ज्यादा होंगी कनेक्टिविटी उधर ज्यादा होगी. ठीक है. तो बहुत सिंपल सा जो है, लेट्स से दिस इज एस एंड दिस इज वी माइनस एस. ठीक है. या तो एक बार इसके लिए अपन कंसीडर कर सकते हैं एस, तो वी माइनस एस इधर हो सकती है. तो सिंस नोड्स इधर ज्यादा है तो कनेक्टिविटी इधर ज्यादा रहेगी बजाय इसके, इंटरकनेक्टिविटी मेरा कम रहेगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड लो एक्सपेंशन. ठीक है. अगर मेरा ग्राफ इस तरीके का है तो विद इन स्ट्रक्चर अगर मैं मान लो इधर कुछ और भी बनाता हूं तो अगेन द थिंग इज कि एक्सपेंशन इधर ही ज्यादा रहेगा बजाय इधर होने के. ठीक है. एंड देन वी हैव कम्युनिटीज. तो बेस्ड अपॉन दैट ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर हम इंटरमिक्स करें तो दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज अ कम्युनिटी. ठीक है. इसमें विद इन network the expansion will be high, between the communities the expansion will be low. ठीक है. So this is the notion. ठीक है. This is the idea. ठीक है. Now from this ये हमें कैसे हेल्प करेगा उसका path length identify करने में. In a graph on n nodes with expansion alpha, for all pair of nodes there is a path of length O log n times divided by alpha. ठीक है. Now alpha is the expansion. ठीक है. तो expansion है term. ठीक है. और expansion कैसे वेरी करता है that we have seen with respect to the interconnection and the intra-connections. ठीक है. अब log n term कहाँ से आया? log n term ऐसा आया कि
सपोज करो ये दो नोड्स हैं, ये तीन, आगे जो जैसे जैसे नेटवर्क मेरा बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते जाएंगे, एंड नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे तो जो मेरा एक्सपेंशन है वो कुछ इस सेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर एक्सपेंड हुआ, इधर एक्सपेंड हुआ, ठीक है, एंड इधर एक्सपेंड हुआ, देन फ्रॉम हियर आगे और एक्सपेंशन बढ़ता चला गया। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर, एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह बिल्ड होता जा रहा है। दिस इज गेटिंग बिल्ड अप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। और ट्री की मैक्सिमम डेप्थ क्या हो सकती है, मैक्सिमम किसी नोड, अगर हम BFS अप्लाई कर रहे हैं तो सारी नोड्स ट्रैवर्स करने का टाइम O log n हो सकता है, ठीक है। अगर मैं BFS अप्लाई करता हूँ तो मैं सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर जाऊंगा कंसिडरिंग वन सोर्स नोड, है कि नहीं? अरे है ना। आवाज आ रही है मेरी? कैन आई हैव सम रिस्पॉन्स? और या फिर सबने ही अपना ऑन करके छोड़ दिया है? यस सर। तो इतनी देर हाँ ना करने में कैसे लगी भाई? अरे नहीं समझ आ रहा तो बताओ ना, ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो वी विल उसको एग्जाम्पल के थ्रू ओपन करेंगे, समझेंगे। मतलब आ रहा है समझ में, है ना? सर ये लॉगिन कैसा है? लॉगिन कैसे है? वेरी गुड, ट्रावर्सिंग के लिए। ठीक है। अब मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एक्सपेंशन हो रहा है ये ट्री फॉर्म में हो रहा है भाई। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा, मैं एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहा हूँ भाई, ऐसे ही ग्राफ ग्रो करता है कि पहले कुछ नोड्स होती हैं, दो नोड्स, मान लो ये दो फ्रेंड्स थे, इन दो से चार हुए, इन चार से फिर 8 हुए, ठीक है। तो ये ग्रो ऐसे ही करता है नेटवर्क हमेशा, अरे ऐसे ही कर रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो ये ट्री फॉर्म का एक्सपेंशन जैसा नहीं लग रहा तुम्हें? यस सर। है ना? ओके। ट्री फॉर्म का एक्सपेंशन लग रहा है, एंड क्या बोलते हैं, ट्री को अगर मैं ट्रैवर्स करता हूँ, अगर मैं BFS पे बोलता हूँ कि मुझे BFS अप्लाई करके सारी नोट्स को विजिट करना है, तो ब्रेड फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हाँ, अरे भाई जितनी हाइट है ट्री की भाई, BFS लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ही होता है ना BFS। अरे DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हो भाई, प्लेसमेंट में क्या कर रहे हो तुम? BFS लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। हम्म। यस सर। अरे ऐसे ही यस सर नहीं, बट ये समझ रहे हो नंबर ना, ऑफ। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किसे कहते हैं? पहले इस लेवल की सारी नोट्स विजिट हो जाएंगी, फिर इस लेवल की नोट सारी विजिट हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही चलता है BFS। हाँ, बट सर पूरा ट्रैवर्स करने में तो है पूरा ट्रैवर्स करने में बिग O ऑफ n होगा ना? बिग O ऑफ n कैसे होगा? सर हम एक एक हर वर्टेक्स अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो n वर्टेक्स है तो हमको n बिग O ऑफ n हो जाएगा। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इन ऑर्डर ऑफ n हो जानी चाहिए। अरे भाई इसकी एज लिस्ट मेंटेन करोगे, एज लिस्ट या एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करोगे तो मेन लूप कितनी बार ट्रैवर्स होगा? ठीक है सर, समझ गया। समझ गया ना?
भाई स्टेप काउंट्स होंगे ना वो तो, कि भाई फर्स्ट लेवल पे हूं तो वो लिस्ट कब तक ट्रैवर्स होती रहेगी, तब जब तक कि उस लेवल पे सारी नोड्स ना उस लेवल की सारी नोड्स एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो सिंस दिस इज अ ट्री काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, तो ये सारा ट्रैवर्स करने में आई विल बी हैविंग बिग ऑफ लॉग एन एंड डिवाइडेड बाय अल्फा ड्यू टू द फैक्टर कि एक्सपेंशन कितना होता है, उसका कट डाउन कैसे होगा कि एक्सपेंशन कितना, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो टाइम कम लगेगा, मतलब क्या बोलते हैं आपका पाथ लेंथ कम होगी। मतलब देखो अल्फा कब ज्यादा हो रहा है, इस तरह के केस में अल्फा ज्यादा हो रहा है, अल्फा इज हाई ओवर है, ठीक है, जबकि इसमें अल्फा लो है। अल्फा अगर हाई है तो पाथ लेंथ कम होगी, ठीक है, पाथ लेंथ कम, भाई वो क्लोज स्ट्रक्चर जैसा बनेगा ना, पास पास रहेंगी सब नोड्स। और अगर अल्फा ज्यादा है, सॉरी अल्फा कम है, तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, है ना, एक्सपेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब पाथ लेंथ बढ़ेगी, एक्सपेंशन ज्यादा होने का मतलब पाथ लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, random graphs have good expansion, so it takes a logarithmic number of steps for BFS to visit all nodes. ठीक है, this is a order कि log n उसके बाद np and then c। ठीक है, तो इसको अगर हम एवरेज देखा जाए कि डायमीटर अगर हमें डिफाइन करना है तो दैट इज log n डिवाइडेड बाय log np, n into p, दैट इज द मीन पाथ लेंथ, n into p अपन कहते हैं ना, np मीन पाथ लेंथ, तो उसका एवरेज अल्फा को हम log np के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एंड p इज द प्रोबेबिलिटी। ये वो मतलब जो p जो फैक्टर है आपका जो GNP में आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसका कोई मैथमेटिकल हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के जो हमारा डायमीटर है या पाथ लेंथ है वो हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं किसी ग्राफ का। ठीक है, the simple reason is we first consider that the expansion of the graph, yeah, the graph grows in the form of a tree, and the cut down factor is given by this alpha expression. Now this alpha expression is estimated based upon this hierarchy। ठीक है, तो ये हमने कुछ आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एडॉस रेनी ग्राफ मॉडल पे। ठीक है, तो पाथ लेंथ टर्न्स आउट टू बी ओ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन ओनली, उसको हम कंसिडर करते हैं कि अल्फा 1 ही है हमारा, मॉडरेट है, तो इट इज एस्टिमेटेड एज लॉग एन, या तुम उसको यहाँ से भी एस्टिमेट कर सकते हो कि ये लॉग एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू दिस लॉग एन पी, क्योंकि लॉग एन इज ग्रेटर देन एन पी है, तो अगर इसका लॉगरिथमिक से कंपेयर करोगे तो दिस विल बी वेरी मच ग्रेटर देन लॉग एन, दिस लॉग एन इज वेरी मच ग्रेटर देन लॉग एन पी। ठीक है, तो हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं एज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, clustering coefficient we have already calculated, the only thing now remains is the connected components। ठीक है, तो connected components के लिए again we took the help of this डिग्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम एवरेज डिग्री को क्या डिफाइन कर रहे हैं, 2e/n, और इसके हिसाब से जो हमने एडल्स रेनी ग्राफ मॉडल जो अपन ने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ये k/n-1 आया था। k बार n आया था ना, k बार बाय n-1 अपन ने देखा था अभी। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी kn-1। ठीक है, ओके, अब यहाँ मैं मानता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, जो p वैल्यू है वो 0 है, तो देन इट टर्न्स आउट टू बी एन एम्प्टी ग्राफ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एवरेज डिग्री 1 है तो कीप दिस एवरेज डिग्री ओवर 1, तो ये दिस प्रोबेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी 1/n-1। इसका मतलब कि 1/n-1 का मतलब क्या हो गया कि एक कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट सारा ग्राफ कवर हो रहा है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द जाइंट कंपोनेंट इन माय ग्राफ, तो मतलब 80-90% नोड्स मेरी उसी में कवर हो रही है, तो emergence of the giant component has started from here। ठीक है, giant component appears, then we say that I have some constant
एवरेज डिग्री c by n-1 इन माई ग्राफ। ठीक है, जो एवरेज डिग्री है वो कुछ c के बराबर है। ठीक है, c by n-1। तो यहाँ पे अब सिंस एवरेज डिग्री ज्यादा है तो जो आइसोलेटेड नोड्स हैं वो ज्यादा होने के चांस हैं। ठीक है, इसको तुम एग्जाम्पल से भी लेके कर सकते हो कि सी की वैल्यू कुछ तुमने 10 रख ली एंड देन एन की वैल्यू कुछ 1000 है, तो देयर कैन बी नंबर ऑफ आइसोलेटेड नोड्स इन दैट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो पी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो उसमें कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे आपके कि इसके बीच एच के बीच में भी हो सकता है, नोड के बीच में हो सकता है, इस नोड के बीच में हो सकता है। तो इन एनी काइंड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GNP there will be a number of lot more number of isolated nodes। ठीक है, then we have, अगर मैं इसको log n estimate करता हूँ k को, तो यहाँ अब इसके बाद से जो isolated nodes हैं वो कम होते चले जाएंगे और जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, then we have 2 into log n and finally अगर मेरा k n-1 के बराबर हो जाता है, तो k n-1 एवरेज डिग्री n-1 होने का मतलब क्या है कि every node is connected to every other node in the graph, then that becomes a complete graph। तो उस केस में probability will be 1, that is probability of emergence of giant component will be 1। ठीक है, तो yes at every अगर p 0 नहीं है, जो कि अमूमन क्या मतलब होता नहीं है, p अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी एज ना होने की 0 हो। ठीक है, या सॉरी एज होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो किसी ग्राफ में, तो वो पूरा ही डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। उसके अलावा देयर विल बी ए जाइंट कंपोनेंट ऑलवेज। ठीक है, देयर विल बी अ जाइंट कंपोनेंट ऑलवेज। तो वो वाला कनेक्टेड कंपोनेंट होने वाली बात भी मेरा सही हो गया। ठीक है, देयर इज अ कनेक्टेड कंपोनेंट इन द ग्राफ इन केस ऑफ रैंडम ग्राफ मॉडल। सो नाउ वी कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज। ये हमने एक लास्ट पैरामीटर और दिखा देता हूं आपको। GNP पे लिया है तो हमने n इज इक्वल टू 1 लाख नोड्स लिए हैं एंड k जो है दैट टर्न्स आउट टू, अब डिफरेंट p वैल्यूज के लिए कि व्हेन p वैल्यू इज 0.5 1 1.5 समथिंग लाइक दैट, तो p इंटू n-1 वैल्यू इज दिस। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा वैल्यू आती चली जाएंगी। ठीक है, ऑफ जाइंट कंपोनेंट साइज के, जाइंट कंपोनेंट का साइज क्या होगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ नोड्स इन द लार्जेस्ट कंपोनेंट। तो अब इसको हम अब ये मेरे पास एक रेफरेंस रिजल्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने एक MSN ग्राफ के रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी थे। MSN ग्राफ में कितनी एजेस नोड्स थी, 180 मिलियन, और एजेस कितनी थी, जो भी थी मतलब समवेयर अराउंड। तो हमने उतने ही एजेस और उतने ही नोड्स का एक ग्राफ लिया। ठीक है, इनफैक्ट इसमें तो एजेस हम डिफाइन नहीं करेंगे, दिस इज p, तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस हमने ये सारे पैरामीटर्स एक GNP मॉडल के लिए कैलकुलेट करे, हैविंग सेम नंबर ऑफ नोड्स एज MSN। ठीक है, तो इसमें मेरा डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट मैचिंग बिकॉज MSN जो हमने रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स के लिए डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी वो करी थी पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, और जो रैंडम ग्राफ मॉडल है दैट इज हैविंग द फंक्शन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मैच नहीं करते मेरे। एवरेज पाथ लेंथ मोर और लेस सेम है, उसकी 6.6 से यहाँ हमने कैलकुलेट करी वो अराउंड 6.6 ही था, 8.2। देन वी हैव क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, अगेन द एवरेज क्लस्टरिंग कोफिशिएंट इज नॉट मैचिंग, इट्स 0.11 फॉर MSN, एंड अगर रैंडम ग्राफ की बात करें तो इट इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, एंड देन वी हैव लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज 99% एंड इसका 14 है। ठीक है, इसका एवरेज डिग्री 14 है, तो इसमें भी मतलब मेरा जाइंट कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो ओनली दीज टू प्रॉपर्टीज आर बीइंग मैच्ड, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट आर नॉट मैचिंग। ठीक है, अगर हम रैंडम ग्राफ की बात करें विद द रियल वर्ल्ड नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमने रैंडम ग्राफ के लिए जो एनालिसिस करी दैट डज नॉट इट इज नॉट अप टू द मार्क फॉर योर रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स। ठीक है, ठीक है, दीज ये जो फर्स्ट आपके स्माइलीज बने हुए दैट शोज कि कहाँ पे हम खुश हैं और कहाँ पे हम दुखी हैं।
Now, problems with the random networks model, same that we discussed. Degree distribution differs from that of real networks. Giant component in most real-world network does not emerge through a phase transition. No local structure. Clustering coefficient is too low. ठीक है? So are real-world networks random? So based upon these submissions, we can say that no real-world networks are not random. ठीक है? अब दूसरी बात यह है कि अगर GNP रॉन्ग था तो हमने पढ़ा क्यों उसको? ठीक है, जो चीज गलत थी उसको क्यों पढ़ा? इट इज द रेफरेंस मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास. हमें पता कैसे पड़ा कि ये सही है या गलत है? क्योंकि हमें एक रेफरेंस मॉडल चाहिए था उस सही गलत को पता करने के लिए. ठीक है. It will help us calculate many quantities that can be compared to the real data. It will help us understand to what degree is a particular property the result of some random process. मतलब हम कितना क्लोज हैं और हम कहाँ वर्कआउट कर रहे हैं कि हम उन रियल डेटा सेट्स का जो रिजल्ट्स आ रहा है उनके क्लोज पहुंच सके. ठीक है. दैट्स व्हाई वी स्टडीड दीज प्रॉपर्टीज ओवर अ जीएनपी मॉडल. ठीक है. अटेंडेंस हमने कर दी थी ना? अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब से आपकी? अभी 3:10, 3:15. So I forgot to fill the attendance form. Yes, sir. Can you please open the form? तो ये करो मेरे से. करो. हो गया फॉर्म ओपन? अब हो जाएगा. ठीक है. तो हाँ भाई, क्लास कब से है कोई ये तो बताओ मेरे को. नेक्स्ट 3:20 सर. 3:20 से है ना? तो टाइम है हमारे पास. ठीक है. ओके. चलो अभी तक में कोई, क्योंकि अब ये टॉपिक चेंज होने जा रहा है तो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट से, मतलब स्टार्टिंग से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हो, या किसी को सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो वो भी कह सकता है. चलें आगे. चलो, इसका जो मटेरियल है वो सारा पिक्ड अप है यहाँ से. ठीक है. सो दिस इज द मेन वेबसाइट. इसमें वी आर रेफरिंग टू. Sir, your screen is not shared. या ये जो है, एक मिनट पीछे से आता हूँ. This is the name of the course, CS224W Stanford. Okay, so you come to the home page and we are referring to, I think, this CS224W Fall 2019. Okay, ये शायद हटा दिया है इन्होंने यहाँ से. Just a second. Let's say 2018 वाला देखें. They have removed all the courses from here.
they have removed the courses from here, but let me check. ये पहले 2000 ये YouTube पे, so you can have his course on YouTube and all, पर पहले शायद यहाँ था, they have removed it from here. Nevertheless, कोई बात नहीं, ये स्लाइड्स तो हैं ही अपने पास, we can do this. Fine. नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि हम लोग ना जब ये मॉड्यूल खत्म कर लेंगे तो वी विल हैव वन सेशन ऑन स्नैप एंड नेटवर्क एक्स, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी ग्राफ डेटा सेट को रीड कैसे करते हैं एंड ये सब प्रॉपर्टीज कैसे, उसमें इनबिल्ट फंक्शंस हैं, सो हाउ वी कैन डिस्प्ले द प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास। जब भी ये खत्म हो जाएगा हमारा तो वी विल हैव वन lab tutorial session on that. Not a part of your syllabus lab, क्योंकि हमारे syllabus में है नहीं, but just to make you understand कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो apply कैसे होता है, ठीक है, what's the significance, क्योंकि ये सब जो है these are well established graph theory concepts, ठीक है। ये real world network में कहाँ काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, है ना। उसके लिए मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज उसके लिए वी हैव टू डिग इन अ बिट मोर इनटू द सब्जेक्ट। वो जब हम सेंट्रलिटी वगैरह पढ़ेंगे तब वहाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सेंट्रलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिलेटेड वेरी वेल, ठीक है। बट अभी तो सिंस सब्जेक्ट स्टार्ट ही हुआ है तो, है ना, तो क्योंकि वो फंक्शंस और वो सब जो है वो इन्हीं के थ्रू बने हैं, इनको ही बेस लेके बने हैं इन आइडियाज को। तो ओके फाइन, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मॉडल। देखो अभी तक हमने जो उसमें रैंडम ग्राफ जो लिया था उसमें हमने ये तो कह दिया कि नंबर ऑफ नोड्स तो बराबर हैं, ठीक है, बट अब एज कनेक्टिविटी कैसे इंश्योर करें कि उसका भाई ग्राफ का स्ट्रक्चर इस चीज पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उसका कनेक्टिविटी कैसा है। मैं 5 नोड्स को एक स्टार फॉर्मेट में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना, एक स्टार फॉर्मेट में भी ज्वाइन कर सकता हूँ और एक 2 ट्राइंगल बना के भी ज्वाइन कर सकता हूँ 5 नोड्स को, ठीक है। तो जैसे ही आपने ट्राइंगल बनाया उसके नेटवर्क प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, जैसे ही आपने उसको स्टार बनाया उसके नेटवर्क प्रॉपर्टीज अलग होंगे, ठीक है। भाई ट्राइंगल बनाते ही क्लस्टरिंग कोफिशिएंट बढ़िया हो जाएगा, जबकि स्टार बनाते ही क्लस्टरिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा हर नोड का, ठीक है। तो वो जो कनेक्टिविटी है दैट में ऑल्सो कंफर्म कि भाई वो भी सेम रहे, तो उसको हम कंफर्म करा सकते हैं डिग्री सीक्वेंस के थ्रू। क्या हम डिग्री सीक्वेंस निकालें किसी ग्राफ का कि वो क्या है। डिग्री सीक्वेंस मींस कितने नोड्स 3 डिग्री के हैं, कितने नोड्स 2 के हैं, कितने नोड्स 1 के हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा मैच करना चाहिए, तब हमारे रिजल्ट्स, वो जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की एंड ऑल, दैट कैन बी रिजॉल्व टू सम एक्सटेंट यूजिंग दिस आइडिया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मॉडल क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास कुछ नोड्स हैं जिनकी मुझे डिग्री पता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नल ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन मॉडल या नल मॉडल, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ये A नोड है, इसकी 3 डिग्री है, C नोड है, इसकी 2 डिग्री है, B है, इसकी 4 है, D है, इसकी 1 ही डिग्री है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस दे कैन बी कनेक्टेड इन n नंबर ऑफ वेज, ठीक है। वन ऑफ द वेज टू कनेक्ट दिस इज लाइक दिस, दिस इज द रिजल्टिंग ग्राफ, ठीक है, दिस इज द रिजल्टिंग ग्राफ। बट अगेन वी हैव मेंटेन्ड द डिग्री ओवर हेयर। भाई D की अगर इतनी होनी चाहिए तो इसमें इतनी ही है, ऐसा नहीं है कि D की 2 हो गई है, ठीक है।
तो ये डिग्री सीक्वेंस अगर मुझे पता है तो जो ग्राफ मॉडल बनेगा दैट विल बी मोर और लेस लाइक दैट ओनली, और अगर वैसा नहीं हुआ स्ट्रक्चर तो स्टिल दी डिग्रीज ऑफ द नोड्स आर मेंटेन्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ द नोड्स आर मेंटेन्ड। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा एक यूनिक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन हैव n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो one of the graph structure is resulting graph is this, but the degree sequence is maintained, ठीक है। So we can compare the real world network G and a random G dash which has same degree sequence as G। तो वो जो हमारी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी based due to this configuration model, ठीक है, या based on this configuration model। Okay, now this is very interesting प्रॉब्लम ऑफ सोशल नेटवर्क, द स्मॉल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। स्मॉल वर्ल्ड प्रॉब्लम ये है, ये जो स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि इन 6 स्टेप्स या 6 हॉप ट्रैवर्सल्स आई कैन रीच टू एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये इस स्मॉल वर्ल्ड मॉडल का स्टेटमेंट है कि मैं 6 स्टेप्स में दुनिया में किसी भी पर्सन तक रीच कर सकता हूँ ओवर सोशल नेट, ठीक है। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा रियली मतलब एक्चुअली में होता है? अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया बहुत छोटी होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज दिस स्मॉल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और फिर देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू पीपल, ठीक है। सो बेसिकली ये तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन था विच वाज परफॉर्म्ड बाय दिस पर्सन मिलग्राम इन 67, ठीक है, 1967। एंड व्हाट डिड ही डिड, तो इसमें क्या था, ये एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन ग्लोबल फ्रेंडशिप नेटवर्क, ठीक है। इसने क्या किया, पिक 300 पीपल इन ओमाहा, नेब्रास्का एंड विचिटा एंड कांसास, दीज आर सम स्टेट्स, एंड यहाँ से इसने कुछ लेटर्स पोस्ट करे बॉस्टन में जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बाय पासिंग इट थ्रू देयर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रॉम दीज 4 cities ही स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स टू द स्टॉक ब्रोकर्स इन बॉस्टन, है ना। एंड और फिर उसने उसमें ऑब्जर्व किया कि मुझे कितने फ्रेंड्स को पास करके उस डेजिग्नेटेड पर्सन तक वो लेटर पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब कितने फ्रेंड कनेक्शंस लग रहे हैं उस नेटवर्क तक, उस पर्सन तक पहुंचने में, ठीक है। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज फेमसली नोन एज मिलग्राम स्मॉल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि 64 चेन्स कंप्लीटेड, दैट इज 64 लेटर्स रीच द टारगेट, 300 में से 64 टारगेट तक पहुंचे, ठीक है। उन 64 को पहुंचाने में 6.2 स्टेप्स ऑन एन एवरेज लगे, दैट इज 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि पीपल हु ओन्ड स्टॉक एंड हैड शॉर्टर पाथ्स टू द स्टॉक ब्रोकर देन रैंडम पीपल, मतलब जो स्टॉक में खेलते थे या जो खुद स्टॉक से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, ठीक है, उनको कम टाइम लगा उन स्टॉक ब्रोकर तक पहुंचने में बोस्टन में, ठीक है। और तीसरा जो और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि जो लोग बॉस्टन एरिया में थे उनको और कम टाइम लगा, उनको 4.4 पाथ लेंथ ही लगी, ठीक है। तो 3 चीजें हुई, 6.2 एवरेज लगा, 5.4 जो था वो स्टॉक रिलेटेड जो लोग थे उनको स्टॉक ब्रोकर तक पहुंचने में लगा, एंड 4.4 जो बोस्टन में रहते थे उन्हीं को लगा, क्योंकि बोस्टन में ही पहुंचाना था मुझे, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया कि अब लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं सिमुलेट करूं आज के टाइम में, तो लेट से एक फर्स्ट स्टेप में मैं 100 पीपल तक रीच करता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 100 into 100 तक रीच कर जाऊंगा, मतलब पाथ लेंथ 2 में। पाथ लेंथ 3 में
मैं 100 into 100 into 100 पीपल तक रीच कर जाऊंगा एंड पाथ लेंथ 4 में मैं 100 into 100 into 100 into 100 पीपल तक मतलब 100 मिलियन पीपल तक रीच कर जाऊंगा. फिफ्थ स्टेप में वी विल बी रीचिंग 10 बिलियन जो कि ऑलमोस्ट आपका एंटायर जो वर्ल्ड है उसको कवर कर जाता है. ठीक है. अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सो द प्रॉब्लम वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है. इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो एंड कंटिन्यू टुमारो. ठीक है. Any doubts till this point of time? What is small world experiment and its results? 3 interesting results. Okay, fine. So let's wind up the lecture and we'll continue tomorrow. Thank you all.